So, good morning, guys. Oh, man, this is beauty. Yes, it is. So, जब कल रात में ICU duty is in snowfall. It's a real struggle, guys. इतनी ज़्यादा बर्फ पड़ रही है कि इसमें जाने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है मेरा. मैं चाहता हूँ कि मैं अपने रूम में बैठकर मस्त आराम से इस बर्फ को पड़ते हुए देखूँ और एंजॉय करूँ. बट मुझे जाना ही होगा क्योंकि मेरी प्रेजेंस से किसी की जिंदगी बच सकती है. Let's go, guys. So good morning, guys. So there is heavily snowing outside and the temperature is really in minus. That's why it's snowing. और मैं इस ठंड से खुद को बचाना चाहता हूँ. That's why I packed myself with so many layers. क्योंकि मैं नहीं चाहता मुझे ठंड लग जाए और मैं बीमार पड़ जाऊँ. This is the view from my window. This is really beautiful. I know. Whole of the world, it's holiday, it's weekend, it's Sunday today. But when you are a doctor, there is no day off. क्योंकि मैं posted हूँ ICU में और ICU demands you there. So there are so many sick patients. You have to take care of them. My presence matters a lot. Hey guys, meet my new friend. He's the pirate. Pirate, say hi. Pirate is saying hi to all of you. If you like my pirate, please tell me in the comment box. So good morning, guys. Ha ha ha. So this town is really beautiful, guys. I really love this place. Stop to walk. Oh my god. जैसे oh shit. Oh shit. Oh my god. जैसे हमारे पापा वाली जनरेशन बोलती है कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है अपने स्कूल टाइम में. सो इट्स हेवनली बट एट द सेम टाइम it's getting really difficult to move in this snow. It feels good here, but I have to attend my duties. I really don't want to go there. जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था शिमला, मेरी ज़िंदगी का पहला स्नोफॉल था and that was a really best moment of my life. I really enjoyed that moment a lot. But और उस टाइम पे कुछ ऐसा भी नहीं था. हमारे पूरे बैच के लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते थे और सब मस्त स्नो फाइट करते थे. बट उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था कि हमें कॉलेज जाना है, क्योंकि कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, छुट्टी मार सकते हो. बट नाउ आई एम एन इंटर्न एंड आई नीड टू गो देयर. आई नीड टू गो टू द हॉस्पिटल टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स बिकॉज इट्स माई ड्यूटी and I'm bound to it. So I'm going rather than enjoying the snowfall. But hospital पहुंचने तक के इस रास्ते को, जो ये पूरा एक heavenly place बन चुका है, मैं इस रास्ते को रिकॉर्ड करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ. So stay tuned. वैसे बेसिकली शिमला इस टाइम पर पूरा पैक्ड है. हर जगह से यहाँ टूरिस्ट आए हुए हैं. जब मैं रात अपनी ड्यूटी से वापस आ रहा था, लोग पागल हो गए थे, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे. It's heavily snowing here from the last night and the tourists are going crazy. God is so creative. ऊपर वाले ने कितनी सही चीजें बनाई हैं यार. Nature is so beautiful. Why you guys are not loving this nature? Everybody, I am insisting you guys. Please take care of our motherland. We only have one earth. Please take care of this land. I really love the snow. डॉक्टर की बॉबकैट ने सारी बर्फ हटा दी है. This is hard life, guys. अगर मेरे पास वाटरप्रूफ शूज नहीं होते तो अभी तक मेरे पैरों का काम हो चुका होता, guys. So this building is not any hotel. It's my college, by the way. लोग जिस सिटी में घूमने के लिए आते हैं, अपने 1-2 दिन बिताते हैं और चले जाते हैं. ये कॉलेज आपको घर देता है, आपको डॉक्टर बनाता है एंड आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी यादें छोड़ जाता है. So it's an emotional moment. I'm gonna miss these days when I'm out of this town. This place gives the feel of Hogwarts, and indeed it is. It is Hogwarts for me at least. The days I've spent here are the best days of my life, and I cannot express my feeling in words because it's an emotional thing. I've learned a lot. I've completely changed myself. This city gives me a lot. This college
made me what I am today. It really feels good to be a part of this premium college. Okay, तो मेरे socks गीले हो चुके हैं. Quechua, beautify me, man. Don't worry. Everybody is not perfect, but that's the main purpose of you. You are defying in your main purpose. So what's the use of these shoes? I don't know. So I'm ready. Let's go. Let's save the lives. So this is the monitoring room from where the doctors and nurses keep monitoring the patients for 24 hours. The consultants and the SRs take rounds every day in the morning and in the evening and whenever required, and they decide the plan and workup for the patient. And we interns have to follow their plans and take the samples for the investigations and send them to the lab. Just like in this patient who have diagnosed with acute intestinal obstruction, the plan is decided accordingly and we have to follow this plan and take the blood samples for the investigations. And there is one unique case in our ICU of AML, that is acute myeloid leukemia, which is a type of blood cancer. So मेरे लिए यूनिक केस इसलिए क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ बुक्स में पढ़ा था, अभी तक इसका कोई केस नहीं देखा था. अब सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए मुझे चाहिए होंगे सिरिंजेस, कुछ सिरिंजेस 2 ml के, कुछ सिरिंजेस 5 ml के एंड कुछ सिरिंजेस 10 ml के. सो हम जो भी पेशेंट्स वेंटिलेटर्स पर होते हैं या फिर ऑक्सीजन सपोर्ट पर होते हैं, हम उनका मेनली ABG भेजते हैं 3 ml की, और उस सिरिंज को हमें हेपरनाइज करना पड़ता है सो दैट द ब्लड डू नॉट कोगुलेट. और सैंपल लेने के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है कि हमें फॉर्म्स फिलअप करने पड़ते हैं, क्योंकि जो भी पेशेंट का सैंपल है वो उसी पेशेंट की आइडेंटिटी के साथ मैच होना चाहिए, इसलिए हमें फॉर्म्स के साथ सैंपल्स को भेजना पड़ता है. इन्वेस्टिगेशन फॉर्म्स में हमें पेशेंट की डिटेल्स भरनी पड़ती है. सबसे इंपॉर्टेंट जो डिटेल होती है वो होती है पेशेंट का CR नंबर, जो हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है, एक यूनिक ID जो हर पेशेंट के लिए अलग अलग होती है. उसके बाद पेशेंट का नेम, एज, सेक्स और उसका डायग्नोसिस क्या है, कौन सी डेट को आप टेस्ट करा रहे हो. जितने भी टेस्ट आपको कराने आप इस इन्वेस्टिगेशन फॉर्म पर टिक कर दे सकते हो. और अगर इन्वेस्टिगेशन फॉर्म पर कोई भी टेस्ट अवेलेबल नहीं है तो आप लिखकर वो टेस्ट इस फॉर्म के थ्रू दे सकते हो, जैसे ABG. ICU में 6 घंटे बिताने के बाद और सारा काम निपटाने के बाद मुझे टाइम मिल जाता है खाना खाने के लिए, लेकिन मेरी जगह एक डॉक्टर हमेशा प्रेजेंट है. तो जिन लोगों को नहीं पता है कि ICU का मतलब क्या होता है, तो ICU मींस इंटेंसिव केयर यूनिट, और इस यूनिट में हम उन पेशेंट्स को डील करते हैं जिनकी क्रिटिकल कंडीशन होती है और इनको कांस्टेंट स्पेशलाइज्ड केयर चाहिए होती है, जस्ट लाइक वेंटिलेटरी सपोर्ट. फॉर एग्जांपल्स, पेशेंट्स आफ्टर मेजर सर्जरी, फॉलोइंग एन एक्सीडेंट लाइक कार एक्सीडेंट और सीवियर बर्न, और ड्यूरिंग अ क्रॉनिक और टर्मिनल इलनेस, एग्जांपल हार्ट डिजीज, किडनी फेलियर, एनी स्ट्रोक, हार्ट अटैक, न्यूमोनिया, सेप्सिस. सो इट्स 2:56 संडे और मुझे अब टाइम मिला है खाना खाने के लिए. तो आज हमारा मेन काम था, हमने एक पेशेंट को ICU से जनरल मेडिसिन वार्ड में शिफ्ट किया. बेसिकली पेशेंट स्टेबल हो चुका था एंड इसका मेन रीज़न था कि पेशेंट अल्टर्ड सेंसोरियम में था, सेप्सिस में आया था ICU में जनरल मेडिसिन वार्ड से. द ब्यूटी ऑफ दिस सिटी, सो धूप भी निकल रही है और बर्फ़बारी भी हो रही है. इतनी ज़्यादा धूप है कि मेरी आंखें नहीं खुल पा रही हैं, सो बेयर इट गाइस. तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो केसेस हमें नहीं पता होते हैं तो उनके बारे में पढ़ना पड़ता है. तो मैंने AML अपने 2nd ईयर में पढ़ा था इन पैथोलॉजी, उसके बाद में फाइनल ईयर में बस मैंने ऊपर से देखा है, मैं उसको डिटेल में नहीं पढ़ पाया था. तो बीच बीच में हमें भी पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत पड़ती है, बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती है. बेस्ट रिसोर्सेज तो आपकी बुक्स हैं या फिर आप ऑनलाइन लेक्चर्स देख सकते हैं. लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ जिन टीचर्स की बुक्स आप पढ़ते हो अगर वही आपको पढ़ाएं, हाँ ऐसा पॉसिबल है. जो मेन बुक्स हमारी होती हैं वो JP ब्रदर्स पब्लिश करता है, जैसे फार्मा की KD त्रिपाठी है, जैसे पैथोलॉजी के लिए हर्ष मोहन है, जैसे माइक्रोबायोलॉजी के लिए अपूर्वा शास्त्री है. इसके साथ जो भी आप मैनुअल्स पढ़ते थे, एग्जाम प्रिपरेटरी मैनुअल्स, मेडिसिन के लिए डॉक्टर अर्चित बलूर सर का, या फिर सर्जरी के लिए अगर SRB कॉम्प्रहेंसिव बुक पढ़ते थे, सर के सारे लेक्चर्स अब आपको डिजिनर्व ऐप में मिल जाएंगे. इसी के साथ आप अपने MCQ प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको कंसाइज नोट्स मिलेंगे उन्हीं टीचर्स के जिन्होंने आपके लिए बुक्स लिखी हैं. सो इट्स अ चेरी ऑन केक गाइस. जैसा कि हम सबको पता है कि कोविड की वजह से हमारे क्लिनिकल एक्सपोजर पर कितना इम्पैक्ट पड़ा है, हमारी क्लिनिकल क्लासेस बहुत ज़्यादा हैम्पर्ड हुई हैं. डिजिनर्व ऐप अब आपको क्लिनिकल एक्सपोजर में भी हेल्प करेगी थ्रू क्लिनिकल केस डिस्कशन, जो कि आपके नेक्स्ट एग्जाम में भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि सारी चीज़ें अब इंटीग्रेट होकर आने वाली हैं नेक्स्ट एग्जाम में. ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म आपको एक मौका देते हैं कि आप उस चीज़ को रिवाइंड कर सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं, आप उस चीज़ को फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं. तो इट्स अ गुड थिंग. और जब आप इस विजुअल लर्निंग के थ्रू लर्न करते हैं तो आपको मगअप
अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है एग्ज़ाम्स में, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर ज़्यादा बेटर तरीके से हो जाते हैं। और आप जितना केस बेस्ड डिस्कशन प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी। डिजिनर्व ऐप पर आपको वाइवा फ्रेंडली कंटेंट मिलेगा, क्योंकि ये वही टीचर्स पढ़ाने वाले हैं जिन्होंने आपके लिए बुक्स लिखी हैं, मेडिकल कॉलेज के लिए बुक्स लिखी हैं जो इतनी सदियों से चली आ रही हैं। और इस ऐप पर आपको कंसाइज वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रैक्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक टॉपिक के लिए 4 अलग अलग वीडियोज़ को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप सारा का सारा एक ही प्लेटफॉर्म पर पढ़ सकते हैं। So it's a great deal, guys. So guys, go get this app. Link given in the description, or you can download it from Play Store. I know you can do this. And if you want some discount, I have provided a discount coupon in my description box. Please go check out this. Hey, saste husky. So it's a really good feeling when your patients get shifted to general ward from the ICU. It's अचीवमेंट बाय द वे। उस पेशेंट को मैं डायलिसिस के लिए लेके जाता था डेली। उसको 3 डायलिसिस के बाद उसके सोडियम डिरेंजमेंट ठीक हुआ। सो द डे इज़ गोइंग रियली ब्यूटीफुल, लाइक द स्टार्ट ऑफ द स्नो, एंड नाउ द पेशेंट्स आर गेटिंग स्टेबल। सो इट्स अ रियली गुड डे फॉर मी एटलीस्ट अभी तक। तो आगे देखते हैं क्या होता है। सो अभी जो मेरे सीनियर डॉक्टर साहब हैं JR, जिनके अंडर में मैं अभी अपनी ICU की पोस्टिंग्स दे रहा हूँ। बेसिकली हायरकी ऐसा होता है कि कंसल्टेंट, देन SR, देन JRs एंड देन इंटर्न। सो आई एम द जूनियर मोस्ट डॉक्टर इन द ICU यूनिट। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा काम जो भी होता है, मेडिसिन कौन सा देना है, इसके बाद क्या करना है, वो JRs कंसल्टेंट से डिसाइड कर हमें गाइड करते हैं कि अभी ये करना है, देन वी परस्यू। इफ़ यू सेव 1 person, you will impact almost 5 to 6%. So the medical science is so impactful. So doctors play a very important role. Today I learned, जब उसके अटेंडेंट ने मुझे कम से कम 10 से 15 बार थैंक यू बोला कि आपने हमारी बहुत हेल्प की, आपकी वजह से डायलिसिस हो पाया, आपकी वजह से हमारा पेशेंट ICU से बाहर आ पाया। मैं बहुत छोटा पार्ट था उस यूनिट का, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मैंने कुछ किया है, एंड इट्स अ रियली ग्रेट फीलिंग। मैं इस लाइन में आया था अपने पापा के कहने पर, लेकिन अब मज़ा आने लगा है। सो इट्स ऑल, वो कहते हैं ना, शुरू मजबूरी में किए थे बट अब मज़ा आने लगा है। AML एक ऐसा केस है जो शायद मुझे नहीं लगता था मैं कहीं देख पाता, बट उसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स मैंने इस हॉस्पिटल में देखे। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बी पार्ट ऑफ दिस हॉस्पिटल। जैसा पिछले वीडियो में मेरे भाई ने बोला था कि सोसाइटी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल पाता अगर वो डॉक्टर होता, तो आज मुझे उस चीज़ को रियलाइज़ करने को मिला दैट वी आर द वन who directly impact the society. कुछ खा लेते हैं भाइयों, कुछ तो खाना पड़ेगा brothers. I'm thankful to have food in this chilling winter. I don't know about you guys, but for me, chai is love. तो दुख है इस लाइन में आके बस वो इतना है, सोने को टाइम नहीं मिलता है। आपका कोई शेड्यूल का परफेक्ट शेड्यूल नहीं बन पाता है। जैसे हम सबको बोलते हैं कि 6 to 8 आवर्स की स्लीप कंपलसरी है बाकी सारे इंडिविजुअल्स के लिए, लेकिन हमारी खुद की नींद पूरी नहीं हो पाती है। 24 आवर्स 36 आवर्स की कंटिन्यूस ड्यूटीज, डाइट पूरी कर पाते हो ना, खाना खा पाते हो। ऐसा नहीं होता है कि इसमें कोई लंच ब्रेक होता है कि 1 से 1.5 चलो तुम्हें लंच ब्रेक मिल गया। अगर तुम्हारी नीड है और तुम्हारा पेशेंट अगर वहाँ पर क्रिटिकल है और तुम्हें वहाँ प्रेजेंट होना पड़ेगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि तुम बिल्कुल परफेक्ट शार्प टाइम उसी टाइम पर खाना मिलता है। कभी कभी 3 बज जाते हैं, कभी कभी 4 बज जाते हैं। तो इट डिपेंड्स। रात में भी ऐसा ही होता है। तो बेसिकली डॉक्टर्स की लाइफ की सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक है वो ये है कि उसकी खुद की अपनी पर्सनल लाइफ नहीं होती। सारे काम ठीक है इसमें, तुम्हें बहुत ज़्यादा ऐसे रिस्पेक्ट मिलती है, बहुत ज़्यादा तुम्हें मतलब लगता है कि सेटिस्फैक्ट्री जॉब है कि तुम किसी की लाइफ में कुछ इम्पैक्ट करते हो, तो तुम्हें लगता है कि नहीं, हमारी ज़िंदगी में आने का एक मकसद है। अनन्या पांडे से भी ज़्यादा स्ट्रगल मैंने अपनी ज़िंदगी में कर लिया है। So this is the list of work I have to do after lunch. I have to take samples of these patients. Samples लेने से पहले I prefer to wear gloves because I don't want to get any bloodborne disease. So this is the heparinized syringe जिससे मुझे arterial sample लेना है for ABG. So अभी फिर से मैंने और मेरे सीनियर ने राउंड किया पेशेंट्स का, and then we have decided कि एक पेशेंट को एल्ब्यूमिन चढ़ाना पड़ेगा। Here we use albumin in these patients because patient का plasma volume बहुत कम है, और after using every resources now we have to move to albumin
और इस फॉर्म की हमें ज़रूरत पड़ती है जब हमें पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्रॉस मैच कराना होता है। ये ब्लड ग्रुप क्रॉस मैच वही है जो आप अपने फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS में पढ़ते आ रहे हैं। हम पेशेंट का सैंपल यहाँ से भेजते हैं जिससे कि पेशेंट को उसका ही ब्लड ग्रुप का ब्लड मिले, और ये मॉनिटर पेशेंट के सारे वाइटल्स रिकॉर्ड कर हमें देता है। जो ये 87 है पेशेंट का हार्ट रेट है, 86/70 पेशेंट का BP चल रहा है और 90 पेशेंट की सैचुरेशन है। दीज आर द इन्फ्यूजन पंप जिससे हम मेनली आइनोट्रॉप्स देते हैं जैसे वेसोप्रेसिन, डोपामिन, सो दैट पेशेंट का BP स्टेबल हो सके। And we use this sterile container for the urine sampling. And this is blood culture tube, also known as BACTEC. हम इसमें पेशेंट का ब्लड सैंपल भेजते हैं ये पता लगाने के लिए कि पेशेंट के अंदर कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन ग्रो कर रहा है। एंड दीज आर दी सैंपल ट्यूब, जिसमें रेड कलर की सैंपल ट्यूब हम सारे सीरम के टेस्ट कराने के लिए यूज करते हैं, और ये पर्पल ट्यूब सबसे मेन ट्यूब है जो आपको कंप्लीट हीमोग्राम की पिक्चर दे देती है, और ब्लू ट्यूब हम मेनली यूज करते हैं PTINR के लिए। Finally, I have completed my 4th day in ICU. The day went well. तो जैसे ही ICU की ड्यूटीज खत्म होगी, I will be back to the normal routine of medicine. That is, I have to attend the OPDs, then wards, and then the casualty nights. And the casualty nights are of 24 hours. Like, you have to spend whole night in this chilling winter. Okay, oh my God. Let's see. चाहे कितनी भी बर्फबारी हो, but hospital कभी बंद नहीं होता। No days off soldiers, no days off. So ये ICU की ड्यूटी मुझे इसलिए भी पसंद आ रही है क्योंकि इसमें मुझे सिर्फ 12 घंटे ही ड्यूटीज़ लगानी है। अदरवाइज़ बाकी सारी यूनिट्स में, डिपार्टमेंट्स में, मेडिसिन की कैजुअलिटी में, मेडिसिन की वार्ड नाइट, उसमें आपको 24 आवर्स की ड्यूटीज़ लगानी पड़ती है। एंड इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ। आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड अ लॉट। Bye. Pilot is saying bye to everyone. Okay. Bye. Pilot say bye.